السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی امام المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ تمام تعریفیں و ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حنان ہے، منان ہے، کن فیکون کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام پیارے نبی رحمت للعالمین شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک کا جو سلیکشن کیا گیا ہے قرآن مجید کی آیت سے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج کے پیریڈ میں، آج کا جو نازک ترین پیریڈ، جس میں ہم بہترین ٹیکنالوجی، بہترین معلومات کے ساتھ، بہترین سہولتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس نازک دور میں ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ محتاط رہے، بہت زیادہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم کا اہتمام کرے، بہت زیادہ ہمارے بچوں کو اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف اور اسلام کی طرف ان کو کھینچنے کی، ان کو پکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ فتنہ فساد کا زمانہ، عریانیت کا زمانہ اور مشغولیات کا زمانہ اور سیر و تفریح کا زمانہ اور دنیاوی مشاغل میں مشغول رکھنے کی ہر وہ آسائش و ذبائش کی چیزیں آج اویلیبل ہے جو شاید ہی کسی زمانے میں موجود تھی، کسی زبان میں پائی جاتی تھی۔ سہولتوں کے ساتھ ساتھ مشغولیات اور دوسری چیزیں اور دوسرے اڈے یہاں پر آسانی سے اویلیبل ہے، جس سے ہم کو اور ہمارے بچوں کو، ہمارے ینگ جنریشن کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جس میں لاسٹ تقریر میں نے بتایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے قریب جانے کے جتنے سورسز ہیں اس سے بچاؤ، اس سے بچانے کی ہم کو اس وقت ضرورت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کی تعلیمات میں سے ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں نئی جنریشن کو، شیطان چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو، شیطان چاہتا ہے کہ انسانوں کو انما یامرکم بالسوء حکم دیتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ اس میں ملوث ہو جائے، گناہوں میں ملوث ہو جائے، والفحشاء، اور فحاشی میں ملوث ہو جائے۔ تو بہت ہی زیادہ محتاط انداز میں ہمیں ہمارے بچوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ انما الشیطان ان یوقع، شیطان چاہتا ہے کہ بینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے درمیان میں بغض و عناد پیدا کر دے۔ آج بغض، عناد، دشمنی سب چیز عام ہو چکی ہے، خاندان میں، ریلیشن میں، خون میں، دوستی میں۔ شیطان جو چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پیدا کرے، ہمارے اندر ہم خود اس کو پیدا موقع دے رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں، شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، شیطان کو فالو کر رہے ہیں۔ فی الخمر والمیسر، تمہارے درمیان میں
शराब और जुब्बे के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान में अदावत पैदा कर दे। और शैतान चाहता है कि वह सुद्दाकुम ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से हमें गाफिल करे, वानिस सलात और नमाज से गाफिल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, अपने आप को क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नार, अपने अहल व इयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। अगर हम शबाब से वयसुद्दाकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होने से, वानिस सलात, नमाज से गाफिल होने से अगर हम बचेंगे, अगर हम इसे इज्तनाब करेंगे, इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, नमाज का एहतमाम करेंगे, ये जो सोर्सेस अवेलेबल है इसको इग्नोर करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए अगर हम शैतान की इत्तिबा या अपने नफ्स की इत्तिबा ना करें तो हमारे लिए भला है, हमारे लिए बेहतर है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंडिकेट कर रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को, व अहलिकुम, अपने अहल व इयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के कदम बकदम न चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है। वला युसरिफू, और इसराफ ना करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। आज समाज में, सोसाइटी में एक दूसरे के कंपटीशन में इसराफ अपने उरूज पर पहुंच गया है, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे रेसिडेंस हो, चाहे किसी और भी तरीके की सवारी हो, किसी और भी तरीके, बस एक कंपटीशन चल रहा है सोसाइटी में। उसके नाम पे इसराफ, उसके नाम पे उसके नाम पे अपने ज़ात के लिए, अपने नफ्स के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए इंसान तैयार है, लेकिन हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, अल्लाह ताला का मुतालबा करना, उसको देने के लिए तैयार नहीं है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, दीन पे पैसा खर्च करो। इन्नमा यामुरुकुम बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन व इब्निस सबील वस्साइलिन व फ़िर रिक़ाब व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, खैरात करो, मिस्किनों को दो, मोहताजों को दो, साहिलों को दो, सवाल करने वालों को दो, मोहताजों को दो, मिस्किनों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, ज़रूरतमंद को तुम पे पैदा खर्चा करो, ताकि तुम वो जगह के वारिस बनो जिसके तुम वारिस हो। जो तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की जागिर है उसके तुम वारिस हो। प्रॉपर्टी अगर दादा की है, बाबा की, तो ऐसी हिफाजत करते हैं कि हम इसके वारिस हैं। फ़क्रिया कहते हैं, गुरूर से कहते हैं, माशाअल्लाह तकब्बुर से कहते हैं, सीना फुला के कहते हैं कि हम इसके वारिस हैं, ये हमारी जायदाद है। लेकिन क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जन्नत भी तुम्हारे बाप की मीरास है, जगह है, तुम जिसके वारिस हो, उलाइका हुमुल वारिसून, जिसके तुम वारिस हो। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़ुबूर, हमने ज़ुबूर में लिख दिया है कि मिन बादि ज़िक्री, ना ज़िक्र करने के बाद, अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादी वस्सालिहून, बेशक मेरी ज़मीन के नेक लोग, साले लोग, अमल वाले लोग इस ज़मीन के वारिस हैं। तो ज़रूरत इस बात की है, अपने आप को, अपने अहल व इयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ, इसराफ से बचो। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाला शख्स शैतान का भाई है। हमें ज़रूरत है कि हमारा पैसा नफ्स के लिए, ज़ात के लिए नहीं, बल्कि रब की खुशनुदी के लिए ज़कात में, खैरात में इस्तेमाल करें, नमाज का एहतमाम करें, अपने बच्चों को नमाज को हुक्म दे। वामुर अहलका बिस्सलात, यही मतलब है कि क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम, अपने आप को, अहल इयाल को जहन्नुम से बचाओ, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, खुद भी उस पर जम जाओ। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रिज़्क़ नहीं मांगते, नहनु नरज़ुक़ुक, बल्कि हम खुद तुमको रिज़्क़ देते हैं। इन आयात करीमा की रोशनी में अपना जायज़ा लो, देखो कि क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा का माना क्या है, मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाह रहे हैं कि हम किस चीज़ के वारिस हैं, हमको विरासत में वो चीज़ हासिल करना है। अगर कोई कब्ज़ा कर ले हमारे प्लाट पे, बोलते कि हमारे वालिद साहब का था, हमारे दादा का था,
कोर्ट कचहरी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद में उसको हासिल करते बोलते कि हम इसके वारिस थे। लोगों को बोलते थे कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, हमारी मिरास थी, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसी मिरास के तुम वारिस हो, ऐसी जगह के तुम वारिस हो जिसको मुकद्दमात के ज़रिए से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ अमल के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। उलाइका हुमुल वारिसून, दरअसल यही लोग वारिस है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मिरास को समझने, क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा के मतलब को, मक़ासिद को समझने, और किन चीज़ों से अवॉइड करना है उसको समझने, और किन चीज़ों को फॉलो करना है उसको समझने, और हम जिस चीज़ के वारिस है उसको हासिल करने, किस अंदाज में हासिल हो सकती है, किस अंदाज में हम उसके वारिस बन सकते हैं, इन चीज़ों को तलाश करने, और कुरान को पढ़ने, नमाज को पढ़ने, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अमल करने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उसवा बना के चलने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।